শহরে এলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন একগুচ্ছ প্রকল্প হাতে নিয়ে তিনি শহরে আসেন। এদিন উদ্বোধন হয় মেট্রো রেলের নতুন রাস্তা। নরেন্দ্র মোদীর সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য, বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার, মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর সহ প্রমুখ। এ যেন 2026-এর বিধানসভার আগে ভোটের দামামা বাজিয়ে দিয়ে গেলেন তিনি। প্রতিটা নেতা, বিজেপি নেতার মুখে ছিল একই কথা, এই রাজ্যের 2026-এর বিধানসভা। আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে একটু স্মারক তুলে দিতে বলবো। এই স্মারক আমাদের কলকাতা মেট্রোর প্রতীক, তার মায়াজালের প্রতীক। এখন গঙ্গার তলায়ও মেট্রো চলে। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम अनुरोध करते हैं श्री शांतनु ठाकुर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, से वे माननीय प्रधानमंत्री सर को पश्चिम बंगाल की आराध्य देवी शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की प्रतिमा भेंट करें। धन्यवाद सर। আমরা বন্দর, জাহাজ চলাচল এবং জলপথের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় শান্তনু ঠাকুরকে অনুরোধ জানাই তার স্বাগত ভাষণের জন্য। हम स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करते हैं सर को। ভারত মাতা কি। আজকের এই শুভ সন্ধিক্ষণে আমাদের মধ্যে উপস্থিত বিশ্ববরেণ্য নেতা, ভারতবর্ষের 130 কোটি দেশবাসীর লোকপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদরজি, আমাদের মধ্যে দামোদর দাস মোদীজি উপস্থিত আছেন। আমাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মহামহিম রাজ্যপাল ডক্টর সিভি আনন্দ বোসজি। আমাদের মধ্যে আছেন শিক্ষা ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী মাননীয় সুকান্ত মজুমদার, ডক্টর সুকান্ত মজুমদার আছেন মাননীয় রাজ্যসভার সাংসদ শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্য, আছেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী। এছাড়া সমস্ত অফিসিয়ালস, আধিকারিকগণ, সকল অতিথিবৃন্দ, সাংবাদিক বন্ধুগণ, সকলকে আজকের এই শুভ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই, অভিনন্দন জানাই। আমরা যে শুভ সন্ধিক্ষণ আজকে আমরা পেয়েছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির উপস্থিতিতে, সেটা আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। আজকে রেলের উদ্বোধন, যে উদ্বোধনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতার মানুষদের জেলা এবং শহর স্তরে যেভাবে সংযোগ মাধ্যম তৈরি করে দেওয়া হলো, এটাও একটা হিস্টোরিক্যাল রিপোর্ট বলে আমি মনে করি। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যেভাবে একের পর এক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, আমি মনে করি ভারতবর্ষের এটা একটা রেভলিউশনারি পিরিয়ড, যেটা কিনা একটা রেনেসাসের মতো অবস্থা তৈরি করছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে। আপনারা দেখেছেন ফার্স্ট লাইন টু লাস্ট মাইল কানেক্টিভিটি, চেনাব ব্রিজের মতো ব্রিজ তৈরি করে আজকে জম্মু কাশ্মীরের সঙ্গে যে সংযোগস্থল তৈরি করা হয়েছে, এটা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা জাগরণ তৈরি করেছে। আমরা যদি 2047কে লক্ষ্য করে বিকশিত ভারতের কথা ভাবি, সর্বপ্রথম দেশের অর্থনীতি, দেশের সামাজিক, দেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আমাদের অভ্যন্তরীণ ডেভেলপমেন্ট দরকার। আর যে ডেভেলপমেন্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি তার কর্মকাণ্ডে একের পর এক করে চলেছেন। আমরা যদি যাই যে পোর্ট শিপিং ওয়াটারওয়েজে, আজকে আপনারা যদি দেখেন, আজকে প্রায় 5000 কোটি টাকা খরচা করে হলদিয়া টু বারাণসী পর্যন্ত
জেটি, রোরো, রোপ্যাক্স এবং বিভিন্ন যাতায়াত ব্যবস্থা সুগম ব্যবস্থা করা হচ্ছে, ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজকে ডেভেলপমেন্ট করা হচ্ছে, ড্রেজিং করা হচ্ছে। গঙ্গা বিলাসের মতো যে বড় একটা প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি করেছিলেন এবং সফলতম গঙ্গা বিলাস আজকে বারাণসী থেকে আজকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত চলেছে, যেখানে 32 জন সুইজারল্যান্ডের যারা যাত্রী ছিলেন এবং তারা তাদের প্রশংসা তাদের চিঠির মাধ্যমে লিখেছে এবং বলেছেন যে কালচার, যে সভ্যতা আমরা পেয়েছি 5-6টা রাজ্য এবং অন্তিম সময় গিয়ে আসামে, তাতে আমরা অভিভূত। আমরা দেখেছি যে প্রায় 5,000 কোটি টাকার মধ্যে 1700 কোটি টাকা খরচা করে আজকে পোর্ট লেট ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, পোর্ট ডেভেলপমেন্ট করা হচ্ছে। তৎসহ বিভিন্নভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গাতে বন্দে ভারত রেল প্রকল্প থেকে শুরু করে আরও অন্যান্য অনেক ডেভেলপমেন্ট করা হচ্ছে। তো আমি মনে করি এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি তার কর্মজীবনে এমন একটা জায়গা তৈরি করছেন, এমন একটা পশ্চিমবঙ্গের জন্য তথা ভারতবর্ষের জন্য এমন একটা জায়গা তৈরি করছেন যেটা কিনা ভারতবর্ষকে 5 ট্রিলিয়ন ইকোনমি সহযোগিতা করবে। এখন 4 ট্রিলিয়ন, আগামীতে এই ভিতরে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট হবে যখন, তখন অটোমেটিক্যালি বিকশিত ভারত তৈরি হবে। আপনারা জানেন যে টোটাল ভারতবর্ষের যে রেভিনিউ, সেই রেভিনিউর 70% রেভিনিউ জেনারেট হয় পোর্টের মাধ্যমে। তাই বাধাওয়ান এবং গ্যালাথিয়া বের মতো ট্রান্সশিপমেন্ট পোর্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে আজকে উদ্বোধন হয়েছে এবং তার ডেভেলপমেন্টের কাজ চলছে। আমি लास्ट अंतिम समय में मेरा भाषण खत्म करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में 1700 करोड़ रुपया खर्चा करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एम्स बनाए हैं, ये सिर्फ बनगांव लोकसभा नहीं, पूरा पश्चिम बंगाल तत्सह आसपास के जितने सारे राज्य हैं, सभी लोगों को इसका सुविधा और फायदा मिलता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा हार्दिक हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा ये बना के एम्स बना के पूरा पश्चिम बंगाल का मुंह उज्जवल किए हैं। तो इसी के साथ मेरा यह संक्षिप्त वक्तव्य रखते हुए मेरा बात को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं माननीय रेल राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी से अनुरोध करती हूं, कृपया सभा को संबोधित करें। मैं सबसे पहले देश के, दुनिया के बहुत ही मजबूत जिन्होंने लीडरशिप दी है, मैं सारे रेलवे के परिवार की तरफ से, वेस्ट बंगाल की तरफ से मैं आज अपने और सबके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वेलकम करता हूं और बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं। आज उन्होंने, क्योंकि वेस्ट बंगाल उनके दिल में है, तो खास तौर पे वो हमेशा वेस्ट बंगाल के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ते। हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब वो भी विराजमान है, हमारे माननीय यूनियन मिनिस्टर श्री शांतनु ठाकुर जी, शिपिंग एंड वाटरवेज, हमारे बहुत ही माननीय यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ NER सुखंत मजाउदार जी, हमारे बहुत ही मेरे साथी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में समीक भट्टाचार्य जी, और बहुत ही मजबूत यहां पे बीजेपी की ऑपोजिशन लीडर लड़ाई लड़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी जी। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी को आप सुनने और देखने आए हैं।
आप अंदाजा लाइए, जो कलकत्ता मेट्रो है वो प्रधानमंत्री जी से पहले केवल 28 किलोमीटर, बहुत जद्दोजहद से केवल 28 किलोमीटर वो बनी थी। तो 14 से बहुत कठिनाई आई, बहुत बार कई ऐसे कारण हुए, पर फिर भी आज प्रधानमंत्री जी 45 किलोमीटर से ऊपर जो मेट्रो है, प्रधानमंत्री जी आपको आज समर्पित करने आए हैं। और अगले फाइनेंशियल ईयर तक और 22 किलोमीटर जो है मेट्रो कलकत्ता को, वेस्ट बंगाल को मिलेगी। क्योंकि मैं कल से आया था तो कई नौजवानों से बात कर रहा था, आईटी सेक्टर है, आईटी हब है, और इतनी मुश्किल होती है रोज जाना। आप अंदाजा लगाइए, 600 रुपया अगर टैक्सी में आप तो जाते हैं रोज, और मैं यहां से कल वापस जाने लगा रेस्ट हाउस में तो 2 घंटे मुझे लगे, 2 घंटे का टाइम मुझे लगा। और ये मेट्रो प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जो शुरू हुई है, 10 से 11 मिनट और 600 से 40 रुपया, 40 रुपीज। ये आम आदमी जो आखिरी शोर तक खड़ा है, उसकी सोच प्रधानमंत्री जी के दिल में है। मैं प्रधानमंत्री जी और हमारे कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, जिन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई, यही 11 सालों में सिर्फ मैं 1 मिनट में आज दुनिया में जाने जाते हैं। अगर बात करूं असम का बोगीबिल ब्रिज है जो प्रधानमंत्री जी ने दिया, जम्मू कश्मीर में आप अंदाजा लगा सकते हैं, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, बारामूला तक वहां पे ट्रेन जा रही है। जो जम्मू कश्मीर का चिनाब ब्रिज है, जो प्रधानमंत्री जी ने रेलवे का दुनिया का सबसे हाईएस्ट और सबसे अच्छा ब्रिज रेलवे ने और प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को। और अगर मैं बात करूं तमिलनाडु के पंबन ब्रिज की बात करूं, वो एक अनोखी चीज है जो देश को प्रधानमंत्री जी ने और रेलवे ने दी। और आज जो मेट्रो है, ये सबसे अगर गहरी अभी मोमेंटो दिया गया है कि किस तरीके से कठिनाइयों से नीचे से मेट्रो वो जाएगी। और एयरपोर्ट हावड़ा, बहुत बातें हैं, मैं जो क्योंकि टाइम कम है मैं इतना पॉलिटिकल कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, मैंने जो पार्लियामेंट में देखा है, भाई एक कुआं होता है, उसे वेलवी कहते हैं इंग्लिश में, अगर उसमें किसी ने गिरना हो तो उसे कोई बचा नहीं सकता। सारा पार्लियामेंट सेशन कोई एमपी, कोई इनका लीडर, कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, कोई अपने लिए कोई डिमांड नहीं कर सका। उसी कुएं में, उसी वेल में जो पार्लियामेंट में है, वहां पे ही खड़े रहे। कभी वेस्ट बंगाल के लिए, कभी वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए एक कोई रेलवे की जो और किसी की डिमांड नहीं की। और सारे सेशन में अब जो कुएं में जाना चाहता है उसका कोई इलाज नहीं है। पर प्राइम मिनिस्टर फिर भी, चाहे कोई सरकार हो, कोई मुख्यमंत्री हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक ही उद्देश है, विकसित भारत। विकसित भारत में कोई स्टेट भी अगर पीछे रह जाती है तो भारत विकसित नहीं हो सकता। इसलिए प्रधानमंत्री अगर विकसित भारत करना है तो विकसित बंगला हमारे वेस्ट बंगाल को भी करना है। उस वो चले हैं। मैं फिर रेलवे के परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से और आपकी तरफ से मैं फिर हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी का यहां आए हुए उनका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब मैं हमारे देश के प्रिय नेता, दूरदर्शी और सच्चे कर्मयोगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि वे मेट्रो और सड़क परियोजनाओं का रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन एवं शिलान्यास करें।
प्रस्तुत है पश्चिम बंगाल में विकास की गाथा लिखते प्रोजेक्ट्स पर बनाई गई एक लघु फिल्म। अद्वितीय कला, साहित्य और संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से समृद्ध पश्चिम बंगाल की धरती एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को निरंतर प्रगाढ़ करती है। पूर्वोदय से भारत उदय, ये है मोदी सरकार का संकल्प और इसके केंद्र में है विकसितो बांग्ला का विजन। पश्चिम बंगाल को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए और यहाँ के करोड़ों नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार और अथक प्रयास कर रहे हैं। बीते 11 वर्षों में भारत सरकार ने पूरे पश्चिम बंगाल में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से लेकर गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति से लेकर मिडिल क्लास की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सतत और समग्र कार्य किए हैं। इसी इरादे के साथ केंद्र सरकार यहां लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को नई गति दे रही है। विकास की इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी जी कोलकाता और पश्चिम बंगाल के लोगों को लगभग 5,200 करोड़ रुपए की आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की दे रहे हैं सौगात। आज कोलकाता के लोगों के लिए विकास का एक नया सूर्योदय हुआ है, क्योंकि लगभग 4,000 करोड़ की लागत से मेट्रो नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इन परियोजनाओं में शामिल हैं सियालदह से एस्प्लेनेड मेट्रो लाइन, हावड़ा स्टेशन पर आधुनिक सबवे, बेलेघाटा से हेमंता मुखोपाध्याय तक एक नई मेट्रो लाइन और नोआपाड़ा से जय हिंद विमानबंदर तक सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी। इस व्यापक विस्तार से राज्य के 2 सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन हावड़ा और सियालदह अब सीधे मेट्रो से जुड़ गए हैं। इससे रोजाना 6 लाख यात्रियों का सफर बेहद आसान और तेज होगा। इन नए मेट्रो रूट्स पर कई आधुनिक स्टेशनों का उद्घाटन किया जा रहा है। इन स्टेशनों में वीआईपी बाजार, ऋत्विक घटक, वरुण सेनगुप्ता, बेलेघाटा, दमदम कैंटोनमेंट, जेसो रोड और जय हिंद विमानबंदर स्टेशन शामिल हैं। ये सभी स्टेशन लिफ्ट, एस्केलेटर, स्वच्छ पेयजल और आधुनिक सुरक्षा उपकरणों जैसी विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस हैं। सियालदह एस्प्लेनेड, बेलेघाटा हेमंता मुखोपाध्याय और नोआपाड़ा जय हिंद विमानबंदर सेक्शन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर नई मेट्रो सेवाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। लगभग 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 6 लेन एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जा रहा है। ये परियोजनाएं केवल पटरियों, ट्रेनों और कनेक्टिविटी की कहानी भर नहीं, बल्कि करोड़ों पश्चिम बंगाल वासियों के सपनों को नई गति देने वाली है। पश्चिम बंगाल को मिली विकास की ये नई रफ्तार विकसित भारत के संकल्प को भी तेज गति देगी। जय हिंद। আর এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জিকে অনুরোধ করব তার ভাষণ পেশ করার জন্য। सादर निवेदन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हम सभी को अपने विचारों से मार्गदर्शन प्रदान करें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी शांतनु ठाकुर जी, रवनीत सिंह जी, सुकांता मजूमदार जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जी, संसद में मेरे साथी स्वामिक भट्टाचार्य जी, उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, आज एक बार फिर मुझे पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने का अवसर मिला है। अभी मैं नोआपाड़ा से जय हिंद
विमानबंदर तक कोलकाता मेट्रो का आनंद लेकर आया हूं। इस दौरान बहुत सारे साथियों से मुझे बातचीत करने का अवसर भी मिला। हर किसी को खुशी है कि कोलकाता का पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाकई अब आधुनिक हो रहा है। आज यहां 6 लेन के एलिवेटेड कोना एक्सप्रेस वे का भी शिलान्यास किया गया है। हजारों करोड़ रुपए के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए कोलकाता वासियों को, पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, कोलकाता जैसे हमारे शहर भारत के इतिहास और हमारे भविष्य दोनों की समृद्ध पहचान है। आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तब दमदम, कोलकाता, इन शहरों की भूमिका बहुत बड़ी है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम का संदेश मेट्रो के उद्घाटन और हाईवे के शिलान्यास से भी बड़ा है। ये आयोजन इस बात का प्रमाण है कि आज का भारत अपने शहरों का कैसे कायाकल्प कर रहा है। आज भारत के शहरों में ग्रीन मोबिलिटी के प्रयास हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। वेस्ट टू वेल्थ, शहर से निकले कचरे से बिजली बनाने के प्रयास हो रहे हैं। मेट्रो की सुविधा बढ़ रही है। मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। आज हर कोई ये सुनकर गर्व करता है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क अब भारत में है। 2014 से पहले देश में सिर्फ 250 किलोमीटर ही मेट्रो रूट था। आज देश में मेट्रो रूट 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का हो गया है। कोलकाता में भी मेट्रो का लगातार विस्तार हुआ है। आज भी कोलकाता के मेट्रो रेल नेटवर्क के में करीब 14 किलोमीटर की नई लाइनें जुड़ रही है। कोलकाता मेट्रो से 7 नए स्टेशन जुड़ रहे हैं। ये सारे काम कोलकाता के लोगों की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने वाले हैं, ईज ऑफ ट्रैवल को बढ़ाने वाले हैं। साथियों, 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत है। इसलिए आज देश में रेल से रोड तक, मेट्रो से एयरपोर्ट तक हम मॉडर्न ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप भी कर रहे हैं और उन्हें आपस में कनेक्ट भी कर रहे हैं। यानी एक शहर से दूसरे शहर तक लोगों को पहुंचाने के साथ ही हमारा प्रयास है कि उन्हें घर के आसपास तक सीमलेस ट्रांसपोर्ट मिले। और इसकी एक झलक हमें यहां कोलकाता की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में भी दिखती है। जैसे आज हावड़ा और सियालदह जैसे देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन अब मेट्रो से जुड़ गए हैं। यानी जिन स्टेशन के बीच ट्रैवल करने में पहले 1.5 घंटा लगता था, अब मेट्रो से कुछ ही मिनट लगेंगे। इसी तरह हावड़ा स्टेशन सबवे भी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर रहा है। पहले ईस्टर्न रेलवे या सदर्न ईस्टर्न रेलवे से रेल पकड़ने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। ये सबवे बनने के बाद
इंटरचेंज में लगने वाला समय कम हो जाएगा। आज से कोलकाता एयरपोर्ट भी मेट्रो से जुड़ गया है। यानी अब शहर के दूर दूर के हिस्सों से एयरपोर्ट पहुंचना आसान हो जाएगा। साथियों, भारत सरकार पश्चिम बंगाल के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आज पश्चिम बंगाल देश के उन राज्यों में शामिल हो चुका है जहां रेलवे का 100% बिजलीकरण हो चुका है। लंबे समय से पुरुलिया से हावड़ा के बीच मेमू ट्रेन की मांग कर रहे थे। भारत सरकार ने जनता की यह मांग भी पूरी कर दी है। आज पश्चिम बंगाल के अलग अलग रूट पर 9 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है। इसके अलावा आप सबके लिए 2 अमृत भारत ट्रेन भी चल रही है। साथियों, बीते 11 साल में यहां भारत सरकार द्वारा अनेक बड़े हाईवे प्रोजेक्ट पूरे किए गए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। जब 6 लेन का कोना एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तो इससे पोर्ट की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। ये कनेक्टिविटी कोलकाता और पश्चिम बंगाल के बेहतर भविष्य की नींव को मजबूत करेगी। अभी तक के लिए इतना ही। साथियों, कुछ देर में यहीं पास में एक जनसभा होने वाली है। उस सभा में आप सभी से पश्चिम बंगाल के विकास और भविष्य पर विस्तार से चर्चा होगी और भी बहुत कुछ होगा। तो वहां बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं यहां मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।